Everyone, I'm Dr. Deepak from Ozone Pharmaceuticals Limited, and I welcome you all for our series of webinars on pain management across various indications. So, friends, today we bring you one more exciting session and very knowledgeable and rich with practical insights by one of the leading doctor. And before going to the speaker itself, I would like to brief you about Ozone Pharmaceuticals Limited and its mission for 2 minutes. So, friends, the journey of 1,000 miles starts with a single step. With this philosophy, our chairman and managing director, Mr. S.C. Sehgal sir, started Ozone Pharmaceuticals Limited. The vision is the way ozone layer acts as a protective shield, we want to extend the healing touch. The vision of Ozone Pharmaceuticals is to add years to life and life to years because life is precious, friends. So we want to become number one pain management company in the world. And why so? Because we consider pain is the biggest problem and that makes life not worth living. So at Ozone Group, friends, we are determined to create a pain-free world. Pain demands quick relief, so quick relief is ensured in various types of pains, such as back pain, knee pain, frozen shoulder, neck pain, and so on, with our quick product range. So quick oil, quick spray, quick gel, quick liniment, and so on, friends. So this was in brief about Ozone Pharmaceuticals Limited, friends. Now it gives me great pleasure to welcome our speaker for today, Dr. Shruti ma'am, Dr. Ruchi Vashne ma'am. So ma'am, good morning, apologies, and good morning ma'am, welcome. And it gives us great pleasure ma'am to welcome you for this session of webinars. So dear delegates, I would like to welcome and introduce ma'am. So Dr. Ruchi ma'am, she has an experience of 24 years as a musculoskeletal physiotherapist. Ma'am is a director at Ruchi's Advanced Physiotherapy and Wellness Center in Delhi after heading a multi-specialty hospital for 14 years. Ma'am has been able to form 250 districts of women being in the country. She has undertaken thousands of low-cost or no-cost professional activities, camps, awareness in the entire country. A regular panelist in Doordarshan, as well as All India Radio, speaker in many esteemed national and international conferences. Also, the resource person and many other ways, naming a few. मैम वुमेन आइकॉन ऑफ द ईयर भी रह चुकी हैं, उन्हें नारी शक्ति अवार्ड मिला हुआ है एंड शी हैज बीन अ कोविड वॉरियर. मैम को अप्रिसिएशन मिला है फ्रॉम द मिनिस्ट्री एज वेल एज अनन्या फाउंडेशन की तरफ से. डॉक्टर रुचि मैम हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड 4 editions of स्पोर्ट्स कनेक्ट एज ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एंड जिसमें एक में 1500 से भी ज्यादा डेलीगेट्स आए थे अक्रॉस द कंट्री. फ्रेंड्स, it gives me great pleasure to share with you that Dr. Ruchi ma'am is the only physio to be on the cover page of Swedish magazine Physiotherapy. She has played a very important role in women upliftment in the interior districts of the country. Interior districts में भी मैम ने women upliftment पे बहुत significant काम किया है. मैम गीतम यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ एडवाइजरी पे है एंड मैम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है ऑल इंडिया फिजियोथेरेपिस्ट लीग 23-24, जहां पे 18 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसे मिनिस्ट्री ने भी सपोर्ट किया है. सो मैम, on the behalf of Ozone Pharmaceuticals Limited, I welcome you to this webinar and I thank you on the behalf of entire Ozone Group as well as our participants. Ma'am. Thank you so much. Thank you. Good morning, everyone. And thank you, Deepak sir, for the kind introduction. And I welcome all of you. And I think everybody is able to, see me, hear me properly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, why back? Why spine? These days, the discussion is more, or the concentration is more on spine. Why? So, सबसे पहले मैं सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग कोविड के बाद एक दूसरे एरा में रह रहे हैं जिसमें डेफिनेटली बैक, जिसमें नेक,
जिसमें स्पाइन की बातें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कोविड जब आया तो वो कुछ नई चीज़ों को साथ लाया, जैसे इसमें से एक है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, वेबिनार मोड, टेक्नोलॉजी को लाया। लेकिन कोविड उसके साथ एक चीज़ और लाया, इवन दो हमने बहुत लाखों लोगों को खोया, अपनों को खोया उस सिचुएशन में, बट कोविड एक प्रथा लेके आया वर्क फ्रॉम होम की। ऑलरेडी यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में कोविड से पहले भी अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ट्रबल करती थी लोगों को, वो स्पाइन थी। सबसे ज़्यादा पेन मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा इवन डिसेबिलिटी भी आती थी, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ स्पाइन। जो अब साथ में आई, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज़ ऑफ द impact that COVID has left on our posture, on our body, on our mind. That is because of, the way we are sitting, the way we are working, the way we are on the gadgets all the day, how we are managing, है ना? So basically ये सब एक रीजन है कि spine is a matter of grave concern for the people, for the public. कॉमन जनता क्या समझती है कमर दर्द से? जैसे हम बात कर रहे हैं लो बैक पेन, तो लो बैक पेन जो एरिया है वो हमारे रिब्स, हमारे पसलियों से नीचे और पेल्विस, ये जो एरिया मार्क्ड है, मैं आपको वर्टिब्रा एक दिखा भी देती हूँ अगर आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये जो 5, इसे लो बैक पेन में कंसिडर किया जाता है। ये वर्टिब्राज है, इनके बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और वो जेली लाइक स्ट्रक्चर शॉक एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि अगर हम ऐसे समझें कि स्पाइन ही हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, ये जो बोन्स हैं, इन बोन्स के बीच में ये जो डिस्क है, ये कुशन की तरह, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह, ये हमें ट्विस्टिंग में, बेंडिंग में, चीज़ों को उठाने में, लिफ्ट करने में, उन सब में हेल्प करती है। तो सारी मूवमेंट्स इस स्पाइन पे अवेलेबल हैं, ठीक है? सो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। उसके बाद ये पीछे अगर आप देखें तो ये इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित है। जो ये कॉलम बनता है, जो आपको स्टेप्स जैसा दिख रहा होगा, स्पाइनस प्रोसेसेस, इनके बीच में स्पाइनल कॉर्ड सेफ होती है, और इसीलिए किसी भी छोटी-मोटी इंजरी में स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट नहीं होती है। देन देयर आर स्पाइनल वेसल्स, जो यहाँ से निकलती हैं, फोरामेन से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स, जिनके अंदर सेंसेशन होती है, चाहे वो महसूस करने की शक्ति हो, चाहे वो दर्द की शक्ति हो, माने दर्द महसूस करने की, पेन या सेंसरी, राइट? तो ये नर्व्स होती हैं इसके अंदर। L1 L2 के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाने के बाद उसमें हम जो नीचे फाइबर्स होते हैं, जो नीचे स्ट्रक्चर होता है, उसको कॉडा इक्वाइना बोलते हैं। सो कॉडा इक्वाइना क्या होता है? बेसिकली कॉडा इक्वाइना, उसके अंदर जो सप्लाई रहती है, वो उसके नीचे अगर इंजरीज हो जाए तो वो अफेक्ट होती है। सो दिस इज अबाउट स्पाइन। हम ऊपर की स्पाइन की भी बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू टेल यू, ऊपर सर्वाइकल स्पाइन होती है, बीच में डॉर्सल स्पाइन होती है, ये हमारी लंबर स्पाइन है। तो जब आप लो बैक पेन की बात करते हो ना, तो आप मोस्टली L1 टू L5 की बात कर रहे होते हो। L1 2 3 4 5, जैसे MRIs होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो उसमें कई लोगों को 3 और 4 का डिस्क का इशू होता है, किसी को 4 और 5 का इशू होता है। तो अभी मुझे लगता है मतलब यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी हमने बात की पार्ट्स ऑफ स्पाइन की, हमने बात किया लो बैक पेन की। अब हमने बताया जैसे टोटल 33 ये वर्टिब्रास थे, जिसमें से 5 लंबर स्पाइन के वर्टिब्रा थे, इनमें डिस्क थी, नर्व थी और कनेक्टिंग मसल्स थी, पैरास्पाइनस मसल्स हम उनको, एक जनरल टर्म, ऐसे बड़ा इंडिविजुअली मैं मसल्स में ना जाऊं तो उन्हें हम पैरास्पाइनल्स कहते हैं। लो बैक पेन इसी रीजन को, जो रिब्स के नीचे और बटक्स के ऊपर पेन आया, वो हुआ, और उसमें मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है। हम बात कर सकते हैं बैक पेन के जो इंक्रीजिंग फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको और एक दो टर्म्स बताना चाहूंगी जो कॉमनली यूज होती है और लोगों को पता होनी चाहिए। वो है एक्यूट बैक पेन और है क्रॉनिक बैक पेन।
जैसे आज आपका कहीं जर्क लगा या स्पीड ब्रेकर पे कार ने जोर से जर्क लिया और आप वापस आए, जब आपकी बैक वापस सीट से कनेक्ट हुई तो आपको एक सडन शूटिंग पेन हुआ, या आपने सडनली किचन में काम करते वक्त नीचे से आटे का डिब्बा उठाने के लिए आगे झुका और एक स्नैपिंग साउंड आई क्लिक करके, और उसके बाद में वो साउंड के बाद आपको बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गया। आप 8 घंटे से कंप्यूटर पे बैठे थे, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट प्रेज़ेंटेशन थी, अच्छी हुई, लेकिन जब आप सीधा होने की कोशिश किए तो आपको थोड़ी देर समय लगा कोशिश करके सीधा होने में। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन एक एक सडन कुछ घर में मिसहैपनिंग हो जाती है और उसके बाद आपको अचानक ऐसा लगता है कि आपकी स्पाइन स्टिफ हो जाए। ये सारे रीज़न्स और अचानक पेन होना, एक्यूट पेन होता है, दैट इज़ एक्यूट बैक पेन। लेकिन क्रॉनिक बैक पेन होता है जो 3 महीने से ऊपर आपको दर्द, बहुत ज़्यादा नैगिंग पेन चल रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चल रही थी, या कभी-कभी पेन होता था, अचानक ठीक भी हो जाता था। कभी-कभी आप एक क्रोसिन ले लेते थे या डोलो ले लेते थे या कोई और पेन किलर ले लेते थे, उससे पेन चला जाता था, लेकिन फिर आ जाता था 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, और वो आ रहा है पिछले 1 साल से, 2 साल से, तो वो क्रॉनिक पेन होता है। ओके। लो बैक पेन रेडिएट कर सकता है कि नहीं? लो बैक पेन सिर्फ कमर में रहता है, लो बैक पेन सिर्फ कमर से ही ओरिजिनेट होता है, ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताती हूँ। कैन वी चेंज द स्लाइड? ओके। व्हाट इज फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें क्यों जाना चाहिए? फिजियोथेरेपी एक मॉडर्न ब्रांच साइंस की है। इट्स अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। इसमें मेजरली हम बात करते हैं पेशेंट की मूवमेंट के बारे में, पेशेंट को फंक्शनली एबल के करने के बारे में। जैसे अभी डॉक्टर दीपक ने बताया था, एडिंग लाइफ टू ईयर्स, एडिंग ईयर्स टू लाइफ, ये 2 चीज़ें हैं, एंड एडिंग क्वालिटी टू लाइफ। इन सारी चीज़ों में मेजर एक रोल रहता है फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट एक बैकबोन है हेल्थ केयर प्रोफेशन की, क्योंकि हम काम कर रहे हैं आपकी बॉडी पे, ना केवल फिजिकली बट इन दी होलिस्टिक एस्पेक्ट एज वेल, बायो साइको सोशल, हर वे में हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। हम आपके पास 5 मिनट नहीं स्पेंड कर रहे होते। इफ यू हैव कम टू अस, यू विल मिनिमली बी स्पेंडिंग 1 आवर विद अस, सो वी विल बी नोइंग कि अगर आप बैक पेन के साथ आए हो तो हो सकता है वो पेन कहीं से रेडिएट हो रहा हो और बैक ठीक हो। ये भी हो सकता है अगर आप नी पेन के साथ आए हो तो वो पेन बैक से आ रहा हो और नी ठीक हो। सो बेसिकली जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट जाता है तो थेरेपिस्ट ना केवल उसके उस अफेक्टेड पार्ट को असेस करता है, बल्कि उससे एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे को भी असेस करता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, कि आप जिस समस्या के साथ आ रहे हैं वह कोशिश करता है उसको जड़ से समझने की, कि क्या वो पेन केवल बैक रिलेटेड है या क्या वो पेन किसी और ऑर्गन से आ रहा है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बैक का पेन एब्डोमेन से भी आ सकता है, बैक का पेन विसरा से भी आ सकता है, बैक का पेन किडनी से भी आ सकता है, लिवर से भी आ सकता है, गॉल ब्लैडर से भी आ सकता है। तो इतने सारे कारण हो सकते हैं बैक पेन के, उसको हम डिवाइड करते हैं, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो दिस इज अबाउट फिजियोथेरेपी, दैट वी आर कंसर्न्ड विद identifying and maximizing quality of life and movement potential within the spheres of promotion, prevention, treatment, intervention, habilitation, and rehabilitation. Next slide, please. या तो जब हम बात कर रहे हैं लो बैक पेन की, मैं बेनिफिट से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार पेशेंट आपको दर्द होता है ग्रॉइन में, कई बार पेन होता है बैक में, कई बार आपका पेन थाइज में आ रहा होता है, और लेकिन ये सारे पेन आ रहे होते हैं बैक से। सो बेसिकली इफ यू आर हैविंग अ पेन इन द ग्रॉइन और इन द एब्डोमेन और इन द थाई, आप एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए।
कई बार पेन किडनी में स्टोन होने की वजह से भी कमर में आ रहा होता है। ओवरीज होती हैं फीमेल्स की, उनके सिस्ट हो सकता है, वो भी पेन बैक की तरफ जा सकता है। पैंक्रियाज में, जैसे डायबिटिक पेशेंट में या पैंक्रेटाइटिस में अगर पैंक्रियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं तब भी बैक पेन आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गेटिंग योर लो बैक पेन एग्जामिन्ड बाय अ सर्जन और बाय अ थेरेपिस्ट कि ये पेन कहाँ कहाँ से आ सकता है। सो बेसिकली मैं आपको जनरली बताती हूँ कि जो नॉन स्पाइनल कॉजेज होते हैं बैक पेन के, वो ब्लैडर हो सकता है, ओवरी, किडनी, पेल्विस, ओवरी, कैंसर, बेसिकली जनरल स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन भी हो सकता है, टेस्टिस से आ सकता है, पेंडिसाइटिस से आ सकता है और प्रोस्टेट से आ सकता है। ये सारे पेन बैक से नहीं आके दूसरी जगह से आते हैं और वो बैक में दर्द कर रहे होते हैं। हम इसे रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। और जो स्पाइन रिलेटेड होते हैं वो स्लिप डिस्क से आ सकता है, शैटिका से आ सकता है, मस्कुलर स्प्रेन, पोस्चर, स्टीनोसिस से आ सकता है, उसके बाद लिस्थेसिस से आ सकता है, कोई इंजरी, ट्रॉमा, गलत तरीके से बैठने से आपस में बोन्स अटक गई, फेसेट्स अटक गए, प्रोलैप्स हो गया, स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आ गया, जर्क लग गया, स्प्रेन, स्ट्रेन, ये सब चीजें हैं जो स्पाइन की वजह से हो रही है और दर्द स्पाइन में ही कर रही है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देयर कैन बी पेन विच इज कमिंग फ्रॉम विसरा एंड देयर कैन बी पेन विच इज कमिंग फ्रॉम द स्पाइन इटसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तब फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मूवमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। आपकी मूवमेंट के साथ साथ वो इंजरी का किस तरीके से आपको सपोर्ट, सप्लीमेंट्स जो भी चाहिए उन सब के लिए कोशिश करते हैं कि वो आपको एडवाइस कर सकें। बिकॉज जैसा मैंने बताया कि हम होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं, हम पेशेंट को केवल इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, हम पेशेंट्स को इसके लिए भी ट्रीट करते हैं कि उनको ये रेपिटेशंस, रिकरेंस ना हो, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yeah. So physiotherapist will help you in increasing the flexibility, in restoring your mobility, in decreasing the pain symptoms, in increasing the muscle strength and flexibility, and improving the lower back pain functions. तो ये सारे मेजरली एक मस्कुलोस्केलेटल थेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हो तो पहले वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, रूल आउट करेंगे कि ये बैक पेन बैक की वजह से ही है, ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ से आ रहा है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है तो आपको इन्वेस्टिगेशंस के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। लोकलाइज पेन तो नहीं है, रेडिएटिंग पेन है। वो पेन किस टाइप का है, शूटिंग पेन है, स्टैबिंग पेन है, बर्निंग पेन है, कुछ सुन्न होने की किसी किसी को फीलिंग आती है, किसी को टिंगलिंग आती है, किसी को दांत में दर्द जैसा पेन आता है। सो दिस इज हाउ फिजियोथेरेपिस्ट विल एग्जामिन यू। उसके बाद वो टच करके देखेंगे कि मसल में स्पाज्म तो नहीं है, मसल गर्म तो नहीं है, टेम्परेचर, ट्रिगर पॉइंट्स तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, नोड्स तो नहीं बने हुए। देयर आर स्पेशल टेस्ट जो वो करते हैं, एसएलआर टेस्ट होता है, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं कि कभी मूवमेंट तो नहीं अटक गई है, कोई टेंडर पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजें वो लोग एग्जामिन करके फिर एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये कारण है बैक पेन का। कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, इसे बताने फिजियोथेरेपी फॉर लो बैक पेन। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉजेस जो हो सकते हैं, देयर कैन बी वेरियस कॉजेस, और वो कॉजेस आपको ये समझना रहेगा कि वो कॉजेस आपकी इम्पॉर्टेंटली जो आजकल होता है वो पॉस्चर है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो फिजियोथेरेपिस्ट देता है वो करेक्टिंग द पॉस्चर देता है, आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे देता है, आपकी स्ट्रेंथ पे देता है, आपके पेन रिलीफ को करने के लिए देता है, आपका डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करने के लिए देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yeah. So before telling the like exercises, I would also like to mention कि there are various myths and facts which are related to spine. जैसे मैंने अभी बताया ना कि ऐसा नहीं होता है कि बैक पेन केवल स्पाइन से ही ओरिजिनेट होता है। आई हैव टोल्ड यू देयर आर मेनी अदर रीजंस टू गिव यू बैक पेन। देन एक मिथ होता है कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो बेड रेस्ट पे चले जाइए।
नहीं। अगर आपको बैक पेन हो रहा है, इमीडिएटली रश टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, उनको एग्जामिन करने दीजिए। अगर वो बैक पेन मसल्स की कमजोरी की वजह से हो रहा है, दे विल गाइड यू, हेल्प यू टू स्ट्रेंथन द मसल्स, हेल्प यू टू गेट योर कोर मसल स्ट्रॉन्ग, हेल्प यू टू गेट योर फंक्शन स्ट्रॉन्ग, और वो आपको उन पर्टिकुलर कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम से हेल्प कर देंगे आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, आपके दर्द को कम करने के लिए। तो अपने कोर को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, एक्टिव रहने को, वो ज़रूरी होता है, बेड रेस्ट नहीं होता। तीसरा मिथ होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें तब विज़िट करना चाहिए जब हमें बेसिकली हम लोग पहले सर्जन के पास जाएँ, इन्वेस्टिगेट कराएँ, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला, सर्जन ने आपको दवाइयाँ दी, आप जब तक पेन किलर खाते थे आराम होता था, जब पेन किलर बंद किया फिर से दर्द होना शुरू हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है तो यार चलो फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलते हैं। रॉन्ग। अगर आपको पेन हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, मीट हिम, उनको अपनी सारी हिस्ट्री बताइए, उन्हें एग्जामिन करने दीजिए। इट इज़ नॉट अ सीरियस मेडिकल कंडीशन जिसके लिए ज़रूरी हो एमआरआई या एक्स-रेज़। बहुत सारी चीज़ें क्लिनिकल एग्जामिन और क्लिनिकल टेस्ट करने से ही आपको फिजियोथेरेपिस्ट बता देगा, और आप अननेसेसरी हज़ारों रुपए खर्च करने से बचोगे, जो कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ जब वो बता देंगे ये कारण है, वो कारण को आप ट्रीट कर सकते हैं। ओके। एक कमर दर्द आ गया या डिस्क हो गई तो ज़िंदगी भर रहेगी। ये बहुत गलत मिथ है, ये बहुत गलत धारणा है लोगों की। अगर डिस्क हो गई तो आप अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप अपनी मसल्स को, जैसे आप खाना ज़रूर खाते हो, उसी प्रकार से अगर आप अपनी मसल्स की एक्सरसाइज़ेज़ अगर प्रॉपर रिजीम में कर रहे हो, तो इन दैट केस बी श्योर यू वुड बी एबल टू फाइट योर बैक पेन। आपका बैक पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Along with that, definitely periodic investigations are very important. कई बार यूरिक एसिड, कई बार विटामिन डी की कमी होने से, B12 की डेफिशिएंसी से भी पेन्स हो रहे होते हैं, तो तब ज़रूरी होता है अपने सप्लीमेंट्स लेना। यू कैन गो एंड विजिट योर ऑर्थोपेडिक सर्जन और अ जनरल फिजिशियन फॉर इट। केवल इंजरी होने के बाद ही डिस्क हो सकती है, नहीं। अगर आपकी स्पाइन, अगर आपका वर्टेब्रा वीक है, तो एक छोटी-सी मूवमेंट, जैसे मैंने बोला बाथरूम में बाल्टी उठाना, सुबह पौधों में पानी देना और उसमें गमले को खिसका देना, इतना छोटा-सा ट्रॉमा भी बहुत है आपकी स्पाइन को अफ़ेक्ट करने के लिए, आपकी डिस्क को अफ़ेक्ट करने के लिए। आफ्टर दिस स्क्रीनिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो मैं अभी आपको बताऊंगी, देयर आर वेरियस इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज दैट वी गिव टू द पेशेंट्स, जिसमें से कुछ है हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, जिसके अंदर माइक्रोवेव डायोथर्मी आती है, जिसके अंदर जो क्रायोथेरेपी के वेरियस मोड्स आते हैं। आजकल एडवांस थेरेपी में पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, हॉट पैक्स के अंदर भी बहुत एडवांस्ड techniques हैं। Then there is like TENS, there are various currents which are used for this. देन जैसे अब ये एक एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। सो जो हिप की मसल्स है, जो बैक जहाँ इंजेक्शन भी लगता था, उसको ग्लूट मसल कहा जाता है। सो दिस इज ग्लूट ब्रिजिंग। ये एक पर्सन की ग्लूट मैक्सिमस वेट बियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपकी ग्लूट्स स्ट्रांग रहेंगी और आपको बैक पेन कम होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नी टू चेस्ट। इसको आप जब घुटने को मोड़ के आपने पेट से लगाया, इसमें ध्यान रखिए जितने भी घुटने के दर्द वाले लोग हैं, वह हाथ को ऊपर ना रख के अपने थाइस में रखें, घुटनों के नीचे रखें और उसके बाद नी टू चेस्ट करें। ये आपकी लोअर बैक की मसल से टेंशन रिलीज करता है, आपकी एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट स्लाइड। प्लैंक। प्लैंक बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ये आपकी कोर को, आपके हिप को, आपकी स्पाइन को, आपकी नेक को, आपके टोज को, सबको स्ट्रेंथन करता है। इसको मेंटेन करना बेस्ड ऑन आप कितनी देर मेंटेन कर सकते हैं। पोस्चर देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। बहुत ध्यान रखिए, स्पाइन में 3 कर्वेचर होते हैं, जैसे मैंने आपको स्पाइन दिखाई थी। अगर आप ध्यान से देखें, स्पाइन सीधी नहीं होती, यहाँ से कर,
यहाँ से कर्व और यहाँ से कर्व। लंबर स्पाइन की क्योंकि बात कर रहे हैं तो मैं उसी के लिए बताना चाहती हूँ, ये लॉर्डोटिक कर्व होता है, लॉर्डोसिस, और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग वालों में ये लॉर्डोटिक ये चला जाता है कर्व, और इस कर्व के जाने की वजह से बहुत लोगों को बैक पेन होता है। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट इन दैट, बैक का ध्यान रखिए, उस कर्वेचर को मेंटेन करिए। ये कर्वेचर ही इम्पॉर्टेंट है आपकी स्पाइन को इंजरी से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अनदर एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड बर्ड डॉग। ये भी ग्लूट्स पे काम करती है, ये आपके बैक एक्सटेंसर पे भी काम करती है। और अगर आप स्टैंड, बेंडिंग और लिफ्टिंग, इसको मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ एज वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, कि बेंडिंग के वक्त ध्यान रखिएगा कमर से, वेस्ट से आगे ना झुकना है तो आप घुटने के बल पहले घुटना मोड़िए, नी बेंड कीजिए, स्क्वाट कीजिए। उसके बाद जिस सामान को उठाना चाहते हैं उसे अपने बॉडी के पास लाइए, जिससे फलक्रम बिल्कुल सेंटर में आ जाए बॉडी के। और उसके बाद जब आप उसको उठाएं तो अपने नी को सीधा करते हुए उठाएं, बैक को बेंड ना करें। दिस इज द राइट वे टू बेंड एंड लिफ्ट। अगर आप कमर से बेंड करोगे देयर आर लाइकली चांसेस कि आपको डिस्क हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Abdominal drawing in maneuver to make your iliopsoas, to make your abdomen muscles strong, और अपने हिप्स को प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए, अपनी स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए, सारी टेंशन नीज आउट करने के लिए बहुत ध्यान रखिए जितनी बार आप बैक की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। यू हैव टू कीप ब्रीदिंग, यू हैव टू कीप योर टेक डीप इन, मसल्स को अंदर, सांस को, चेस्ट की मसल्स को यूज करके अंदर सांस लीजिए और धीरे धीरे एक्सेल कीजिए। व्हेन यू डू इट, आप अपनी स्पाइन को बहुत मदद करते हो, टेंशन को ईज आउट करते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साइड प्लैंक्स, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द प्लैंक। ये क्वाड्रेटस लंबोरम मसल पे काम करती है, ग्लूट मीडियस पे काम करती है और टीएफएल पे काम करती है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हमें देखेंगे उन्हें पता होगा कि ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग posture when you are playing. अदरवाइज अगर आपका क्यूएल, अगर आपका मीडियस और टीएफएल वीक होता है, यू गेट बैक इंजरीज, यू गेट नी इंजरीज, यू गेट फुट इंजरीज। Next slide, please. Yeah, seated side straddle exercise. This is for hams, abductors, and extensor muscles in the middle and the lower back. Please see, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इट हेल्प्स। इनफैक्ट इसके वक्त भी आप ब्रीथ प्रॉपर करते रहिए। आप हर एक स्ट्रेच को, जिस भी एक्सरसाइज को हम बता रहे हैं, 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए और उसको होल्ड करने के बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए रिलीज कर दीजिए। सो ये बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो तो आप उस समय ये ध्यान रखें कि आप उसको ब्रीथ जरूर करते रहे, नहीं तो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपने समझ लिया कि फिजियोथेरेपिस्ट आपके पेन रिडक्शन में भी काम कर रहा है, मोबिलिटी भी इम्प्रूव कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा है और आपको और रिकरेंस से बचा भी रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ऑफ कोर्स, ये हमारा आज का टेक अवे मैसेज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योर स्पाइन इज हेल्दी, सो यू आर हेल्दी। आपकी हेल्दी स्पाइन में एक हेल्दी बॉडी रहती है। ऐसा समझिए कि एक हेल्दी सोल उस स्पाइनल केज के अंदर रहती है, तो आपको अपनी स्पाइन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपका बॉडी वेट डेफिनेटली एक हेल्दी स्पाइन को रखने में मदद करेगा। स्ट्रेस को ईज आउट कीजिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। just give your 100% to it. There is nothing which you can't do. और कोई भी चीज को आप पहले गो में सक्सेसफुली करें वो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, इफ यू फेल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज important because then only you will be tasting the success and you will be knowing that how to achieve success and what does it taste like, because you have already tasted the failure. So next slide please. Regular physical activity
हम लोग बहुत इम्पोर्टेंटली कहते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फिट इंडिया मूवमेंट लाया, योगा डे मनाया जाता है। सो प्लीज कीप योर सेल्फ एक्टिव, फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको सरप्राइज होगा, 30 से 32% ही पूरी जनसंख्या जो 1.45 बिलियन है हमारी इंडिया की, वो मॉडरेट एक्टिविटी करती है, जबकि WHO के अकॉर्डिंग 150 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज इन अ वीक इज वेरी वेरी नेसेसरी टू कीप योर बॉडी fit. Next slide, please. सो गुड पॉस्चर आप देख रहे हैं इस स्लाइड में भी कि कर्वेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन द गुड पॉस्चर थ्रू आउट द डे। जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चिन टक, शोल्डर स्ट्रेट, monitor at the level of eyes, elbow rested, heel rested. This all will help you to keep, ease out the pressure on the spine. Sit up straight with the shoulders relaxed and the back supported. Slouch कम कीजिए, आगे forward कम lean होइए, ठीक है, and this will help your spine for long periods. Next slide, please. ओके, ये तो हम बोल ही रहे हैं सभी लोगों को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग गूगल वाले डॉक्टर ना बने। हमारा ये एक प्रयास है आपको अवेयर करने का, आपको बताने का दैट व्हेन यू शुड कंसल्ट योर सर्जन, व्हेन यू शुड गो टू योर नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट प्लस सी वो रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहलवान बैठ जाते हैं, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर और इन सब नामों से अपने आप को प्रमोट करते हैं, बेचते हैं, रील्स बनाते हैं। प्लीज डोंट फॉल इनटू देयर ट्रैप। जब भी आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, चेक देयर डिग्रीज, चेक वो कहाँ रजिस्टर्ड है, वो कितने क्वालिफाइड है, एंड देन यू गो एंड मीट देम। आई एम इन मयूर विहार फेज 1 दिल्ली। तो जो लोग भी अगर यहाँ आना चाहते हैं, नहीं तो in fact you can visit our website, even our association website, that is Indian Association of Physiotherapists. There you will find genuine physiotherapists which are qualified to give you treatment. Thank you so much. And so we want a healthy and pain-free living. We want a pain-free life, and a good physiotherapist and an aware people, awareness, with a lot of awareness programs. So keep attending them and have a good knowledge sharing. Thank you. थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल इंसाइटफुल सेशन। एंड काफ़ी हमारे ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत प्रैक्टिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली आपके सेशन के थ्रू। मैम अगर टाइम परमिट करता है तो कुछ सवाल भी थे ऑडियंस से जो मैं आपको पूछना चाहूँगा। देयर वर फ्यू क्वेश्चन। Please. सो मैम मिस्टर शुभम पूछते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट लो बैक पेन व्हाइल वर्किंग इन अ 9 to 6 कॉर्पोरेट जॉब। सो कुछ पार्ट आपने सेशन में भी इसका एड्रेस किया है, पर अगर आप इस पे और थोड़ा डिटेल में इलाबरेट करें तो इट विल बी ग्रेट। देखिए, 9 to 6 जॉब ही सभी की है जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है। सो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन शुभम। बेसिकली 2-3 हैबिट्स अपनी एक बना लीजिए, और एक जो आजकल कॉर्पोरेट्स, आप अपने कॉर्पोरेट अपने मैनेजमेंट में बात कर सकते हैं, टर्म कॉल्ड ergonomics, a term called having office ergonomics. The chair on which you are sitting, टेबल जिस पर आपका सिस्टम है, ergonomically designed होना चाहिए. There are various computer companies also coming with the gadgets which are ergonomically designed. You can have lectures in your offices, how to sit, how to work for long hours, how to take care of your elbows, your wrist, your shoulders, your neck, your back, while working 9 to 6 in the corporate system, how to have an ergonomically designed फर्नीचर। इसके लिए लोग हैं, आप उन लोगों से मिल सकते हैं, हम उन्हें बुला सकते हैं। हम लोग लेक्चर्स लेते हैं वेरियस कॉर्पोरेट कंपनीज में। यू कैन गेट इन लाइक मंथली वंस यू कैन गेट योर स्पाइन एग्जामिन बाय देम, और वो उसको करेक्ट करने के तरीके बता सकते हैं। और एक छोटी सी हैबिट, हर आधे घंटे में पानी पीने के लिए उठिए। इट विल कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड ऑल्सो, एंड इट विल हेल्प योर स्पाइन टू चेंज द पोस्चर। तो वो थोड़ी सी आपकी स्पाइन को न्यूट्रिशन देता रहेगा। थैंक यू। मैम मिस्टर समित पूछते हैं बैंगलोर से दैट उनका स्लिप डिस्क डायग्नोस हो चुका है, पर वो कहते हैं कि अगर उनको ऑपरेशन डिले करना है विद फिजियोथेरेपी तो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं या कुछ प्रिकॉशंस हैं जो वो ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल है सर। और प्लीज़ अंडरस्टैंड, आउट ऑफ 100 केसेस ऑफ स्लिप डिस्क, ओनली 0.1% नीड सर्जरी।
तो अंटिल एंड अनलेस आपकी मोटर पावर जा रही है लेग्स की, अंटिल अनलेस आप पैर के अंगूठे और टोज को मूवमेंट करने में कमजोरी फील कर रहे हैं, प्लीज डोंट गो फॉर सर्जरी. फर्स्ट यू गो एंड गेट योर सेल्फ एग्जामिन्ड. अपनी कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेस कराइए. जनरली कुछ भी करना मत शुरू कीजिए. आपकी डिस्क कितनी प्रोट्रूडेड है, हर्निएटेड है, कितना कंप्रेशन कर रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर, कितना नीचे जा रही है डिस्क, ट्रैवल कर रही है, कितना ऊपर जा रही है, वो सब असेस करके वो आपको एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बना के देंगे. यू कैन हैव माय नंबर एंड यू कैन जस्ट give me a ping or WhatsApp me. I'll share a good physiotherapist number from Bangalore and you can meet them. थैंक यू मैम. मैम मिस मंजलिका पूछते हैं कोलकाता Any से. other question? यस मैम. मैम मिस मंजलिका पूछते हैं कोलकाता से दैट शी इज लिटिल ओवरवेट, तो वेट के कारण वो ज्यादा वॉक वगैरह कर नहीं पाते, पर उनको लो बैक पेन रहता है ऑलमोस्ट 1.5 साल से. तो उस केस में क्या फिजियोथेरेपी से कैन शी फील बेटर? यस ऑफ कोर्स. और वेट ज्यादा है तो हम चल क्यों नहीं पाते? ऐसा नहीं होता है. इट इज बेसिकली आपकी लेग मसल्स वीक होंगी और उस वेट को नहीं ले पा रही हैं. आपकी बोन्स, आपका विटामिन डी लो होगा जो उस वेट को ले नहीं पा रहा है. तो अगर आप प्रॉपर शू, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सप्लीमेंट्स और प्रॉपर एक्सरसाइजेस के साथ मूवमेंट्स करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? प्लीज मस्ट विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट. यू विल बी एबल टू लूज योर वेट, हैव अ हेल्दी स्पाइन एज वेल. मैम मिस्टर सुधीर पूछते हैं दैट आफ्टर ऑपरेशन अगर उनको लो बैक पेन रिकर होता है तो उस केस में क्या वो फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, और ऑपरेशन के बिल्कुल. कितने ड्यूरेशन बाद वो फिजियोथेरेपी कर सकते हैं? ऑपरेशन के सेकेंड डे से फिजियोथेरेपी उनको स्टार्ट ऑलरेडी करा दी गई होगी जब उनकी सर्जरी हुई थी. सो बेसिकली दिस इज लाइक कि रिकरेंस के वक्त भी फिजियोथेरेपी, सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी, और अगर आपको सर्जरी एडवाइस कर दी गई है तो उससे पहले भी आप सर्जरी के पहले भी प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी जरूर कराएं टू स्ट्रेंथन योर मसल्स, सो दैट जब आप पोस्ट ऑपरेटिव आए सो यू गेट इजीली बैक टू योर वर्क. Thank you for the insightful answer, ma'am. Ma'am, there's one more question. That I have space reduced between C4 C5, Miss Shruti पूछते हैं, which leads to pain and vertigo. So, with regular physiotherapy वो पेन कम हो जाता है पर बाद में वापस रिकर होता है. तो उस केस में क्या करना चाहिए? रिकरेंस इसलिए कर रहा होगा कि आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे होंगे. फिजियोथेरेपिस्ट करना 10 दिन 15 दिन ही इनफ नहीं है. अगर हमारी मसल्स वीक और वर्टाइगो है, सो देन इट इज लाइक अ 6 months प्रोग्राम that every week either visit your physio or have a online consultation, या उनसे आप एक periodically 15 दिन में या महीने में मिलते रहिए. कीप डूइंग योर एक्सरसाइजेस. अगर रिकरेंस है तो उसके गुनहगार आप हैं, क्योंकि आप इसका मतलब एक्सरसाइजेस प्रॉपर नहीं कर रहे हैं. अगर आपने अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, देयर इज नो वे वो रिकरेंस हो. होता क्या है, जब अपन का दर्द कम हो जाता है तो हम उस एक्सरसाइज को करना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं, या लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं, एक्सरसाइज तो होती रहेगी. डोंट मिस इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Okay. So ये कुछ important questions थे मैम. Thank you so much for patiently answering those questions. And ma'am, I would like to hand over the session to Mr. Mohammed Shahid to express vote of thanks now. So Shahid ji, our President Sales and Marketing है with Ozone Pharmaceuticals Limited. So Shahid ji, over to you. Thank you, Dr. Deepak, and a special thank to Dr. Ruchi for really one of the interactive sessions and informative sessions. And this will help to drive this program, pain management program, which we are running every Sunday. And बहुत से लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे, बट आपके थ्रू, डॉक्टर दीपक के थ्रू आप तक वो पहुंचेंगे. एंड मेरा पार्टिसिपेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, विदाउट एनी हिच, आपको कोई भी है, एज अ ओजोन इट इज अवर ऑब्जेक्टिव कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सके, सो दैट आपके लाइफ स्टाइल डे एंड डे बेसिस के ऊपर इसको आप करेक्ट कर सकें. एंड once again, thanks to Dr. Ruchi, entire team, Shruti and team, Dr. Urvi and Dr. Deepak, thanks. And next session, हम लोग फिर मिलेंगे 10:57 पर with another topic. Thank you so much. Yeah. Thank you Thank so you very much, much. and it's a wonderful initiative
Mr. Shahid sir, and it's good that you are creating awareness in the society, which is important because काफी सारी चीजें हम ऐसे ही treat कर सकते हैं rather than going to expensive tests and investigations if we have correct knowledge और वो correct time पे apply करें और correct माध्यम से जाए. So Right. thank you Actually, so much for the this initiative and inviting me. this initiative taken by our respected CMD, who run a lot of this type of program. He want to run this program to reach even people जहां पर professionals नहीं भी है. इंडिया में अभी भी बहुत सी ऐसी places है जहां पर अभी doctors नहीं है. वो medical stores के सहारे चल रहे हैं. Like professional like you can help them. And आप देखेंगे इस ग्रुप के अंदर पैन इंडिया से लोग हैं. लोग बैंगलोर से हैं, लोग यूपी से हैं, लोग बंगाल से हैं. So this is very nice initiative. I agreed, and thanks to management, especially Sanjay sir, our sales director, our CMD, and all the team members. Thanks, doctor. Thank you, ma'am. Thank you so